آج ہم آپ کو ایک فقیر اور شہزادی کی شادی کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ بادشاہ کیسے جانور بن گیا۔ اس دلچسپ واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، ایک وقت کی بات ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا جس کی ایک انتہائی خوبصورت بیٹی تھی۔ بادشاہ اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتا تھا۔ جب شہزادی شادی کے لائق ہوئی تو مختلف راجاؤں کے گھروں سے اس کے لیے رشتے آنے لگے۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے مختلف لڑکوں سے ملاقاتیں کر رہا تھا، لیکن ابھی تک اسے کوئی بھی اپنی بیٹی کے لائق نہیں لگا۔ ایک دن اس کے گاؤں میں ایک بوڑھا فقیر آیا جس کی عمر تقریباً 80 سال کے قریب تھی۔ فقیر بادشاہ سے کہنے لگا، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کو بے حد غصہ آیا اور اس نے کہا، تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی؟ کیا تمہاری اتنی حیثیت ہے کہ تم میری بیٹی کے بارے میں سوچ سکو؟ بادشاہ نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا، فوراً اس کی گردن اڑا دو۔ اس نے جرت کیسے کی کہ میری بیٹی کو اپنی بیوی بنانے کے بارے میں سوچے؟ فقیر کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ فقیر نے کہا، آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں واقعی آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن فقیر کے اس مطالبے کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ تھی، مگر بادشاہ نے غصے میں کہا، میں تمہاری کوئی بات نہیں سننا چاہتا، اور فوراً حکم دیا، اسے لے جاؤ اور قید خانے میں ڈال دو۔ فقیر کو قید خانے میں کوڑے مارے جا رہے تھے۔ جب یہ خبر راجکماری تک پہنچی تو اس نے فوراً اپنے والد بادشاہ سے کہا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کسی بزرگ کے ساتھ ایسا سلوک کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ بادشاہ نے غصے سے جواب دیا، تم بیچ میں مت پڑو۔ راجکماری بہت نیک دل اور بزرگوں کی عزت کرنے والی تھی۔ اس نے کہا، جو بھی ہو، مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے ملک کا بادشاہ کسی بوڑھے انسان پر ظلم کرے۔ بادشاہ نے کہا، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، لیکن اب یہاں سے چلی جاؤ۔ شہزادی وہاں سے چلی گئی، لیکن اسے یہ علم نہیں تھا کہ وہ فقیر دراصل اس کی شادی کا پیغام لے کر آیا ہے۔ جب راجکماری کو معلوم ہوا کہ وہ فقیر دراصل اس کے لیے شادی کا پیغام لے کر آیا تھا تو وہ فوراً اپنے باپ کے پاس گئی اور پوچھنے لگی، کیا واقعی اس فقیر نے مجھ سے شادی کرنے کے لیے کہا تھا؟ بادشاہ نے سب کو منع کیا ہوا تھا کہ شہزادی کو اس بات کا علم نہ ہو، کیونکہ وہ بہت ہی ضدی تھی اور جو فیصلہ کرتی وہ ڈنکے کی چوٹ پر کیا کرتی تھی۔ اب جب بادشاہ کو پتا چلا کہ شہزادی کو سچائی کا علم ہو چکا ہے تو وہ غصے سے کہنے لگا، میری اکلوتی اور لاڈلی بیٹی سے اس بوڑھے فقیر نے شادی کرنے کا سوچا بھی کیسے؟ بیٹی بہت ہی سمجھدار تھی اور اس وقت اپنے باپ کے سامنے خاموش رہی، لیکن دل میں سوچا کہ اگر وہ فقیر مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو مجھے خود جا کر معلوم کرنا چاہیے۔ شہزادی قید خانے میں فقیر سے ملنے گئی اور پوچھنے لگی، آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ فقیر نے جواب دیا، جب تم مجھ سے شادی کرو گی تو تمہیں خود ہی پتا چل جائے گا کہ میں نے شادی کیوں کی۔ شہزادی نے کہا، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ خبر پورے ملک میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ مختلف باتیں کرنے لگے کہ شہزادی ایک بوڑھے فقیر سے شادی کرنا چاہتی ہے اور خود بھی اس پر راضی ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن شہزادی نے جواب دیا، آپ نے مجھے بڑے نازوں سے پالا ہے اور میری ہر خواہش پوری کی ہے۔ اب جب معاملہ میری شادی کا ہے تو میں اسی سے شادی کروں گی جس سے میرا دل چاہتا ہے۔ بادشاہ اپنی اکلوتی بیٹی کی ضد کی وجہ سے بے حد پریشان تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کیسے اپنی بیٹی کی شادی ایک فقیر سے کر دے، لیکن شہزادی نے کہا، میں شادی کروں گی تو اسی سے، کیونکہ میں نے اس کی آنکھوں میں وہ سچائی دیکھی ہے جو آج تک کسی کی آنکھوں میں نہیں دیکھی۔ آخر کار بیٹی کی ضد کے آگے بادشاہ کو جھکنا پڑا۔ اس نے پورے ملک میں اعلان کر دیا کہ شہزادی کی شادی ہو رہی ہے اور یہ شادی انتہائی سادگی سے ہوگی، صرف نکاح ہوگا۔ بادشاہ نے یہ بھی کہا کہ شہزادی شادی کے بعد محل میں نہیں رہے گی بلکہ فقیر کی جھونپڑی میں جا کر اس کے ساتھ رہے گی۔ بادشاہ اس پر بے حد غصہ تھا، کیونکہ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی کی شادی اس فقیر سے ہو۔ شہزادی اپنی منمانی کر رہی تھی، اس لیے بادشاہ نے سوچا کہ اسے سزا دینی چاہیے۔ اس کے خیال میں شہزادی کے لیے سب سے بڑی سزا یہی ہو سکتی ہے کہ وہ عیش و آرام چھوڑ کر فقیر کے ساتھ جھونپڑی میں رہے۔ بادشاہ کا حکم لوگوں کے لیے انتہائی انوکھا تھا، لیکن سب سے زیادہ حیرت اس بات پر تھی کہ شہزادی نے اس بات کو فوراً قبول کر لیا۔ شہزادی نے کہا، ٹھیک ہے، جب میں شادی کر رہی ہوں تو جہاں میرا شوہر رہے گا میں بھی وہیں رہوں گی۔ یہ ایک انوکھی داستان بن چکی تھی جسے کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایک نوجوان شہزادی ایک بوڑھے فقیر سے کیوں شادی کرنا چاہتی ہے۔
बहरहाल शादी हो गई और बादशाह के हुक्म पर शहजादी फकीर के साथ चली गई। फकीर का घर बस एक दरख्त के नीचे बनी हुई छोटी सी झोपड़ी थी। फकीर वहां पहुंचकर शहजादी से कहने लगा, ये मेरा छोटा सा आशियाना है और अब तुम्हें यहीं रहना होगा। तुमने बगैर किसी वजह के मुझसे शादी कर ली है। तुम बहुत अच्छी सोच की मालिक हो, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। मैं दिन भर भूखा रहता हूँ और रात को इबादत करता हूँ। जब कभी कुछ खाने को मिल जाता है तो खा लेता हूँ। क्या तुम मेरे साथ इस हाल में रह लोगी? शहजादी ने जवाब दिया, अगर आपने मुझसे शादी की है तो इसका मतलब यही है कि आप जिस हाल में रखेंगे मैं उसी हाल में रहूंगी। फकीर ने कहा, शादी की है, इसके पीछे दो बड़े राज हैं, लेकिन तुमने मुझसे क्यों शादी की? शहजादी ने कहा, मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी कि अगर मेरी जिंदगी में कोई नेक इंसान आएगा तो मैं उसे अपना शौहर कबूल कर लूंगी, चाहे वो कोई राजकुमार हो या फिर कोई दरवेश। जिस दिन आप मेरे लिए यहाँ आए मैंने अपनी दुआ को अपनी आंखों के सामने कबूल होते हुए देखा है और इसलिए मैं आपसे शादी के लिए राजी हो गई। मेरे वालिद भी इसी वजह से मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैंने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर इस रिश्ते को कबूल किया है और अब जो भी होगा मैं आपके साथ रहना पसंद करूंगी। शहजादी इंतहाई साबिर और शुक्रगुजार थी। फकीर भी ऐसी बीवी पाकर बेहद खुश था। दोनों दिन भर भूखे रहते और रात को इबादत किया करते। फकीर किसी मकसद के बगैर कोई काम नहीं करता था और शहजादी ने यह बात अच्छी तरह समझ ली थी। वो शाही महल और ऐशो आराम छोड़कर फकीरी की जिंदगी इख्तियार कर चुकी थी और अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। फकीर भी अपनी बीवी को इस हाल में देखकर अल्लाह का बहुत ज्यादा शुक्र अदा करता और उसके लिए हमेशा दुआएं करता रहता। एक दिन वो फकीर किसी काम के लिए जंगल से बाहर गया तो एक अनजान आदमी शहजादी से मिलने आ गया। वो शख्स दरअसल शहजादी के वालिद की तरफ से भेजा गया नौकर था। उसने कहा, आपके वालिद साहब आपको बहुत याद करते हैं और पूछते हैं कि क्या आप फकीर के साथ खुश हैं, किस हाल में हैं। ये सुनकर शहजादी का दिल भर आया। नौकर ने मजीद कहा, आपके वालिद ने कहा है कि अगर आप वापस महल में आना चाहती हैं तो वो आपको वापस बुला लेंगे और ये रिश्ता भी खत्म करवा देंगे। शहजादी ने जवाब दिया, लगता है कि मेरे वालिद ने मुझे पहचाना नहीं। मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ और अल्लाह ताला की रज़ा पर राजी हूँ। वो मेरे शौहर हैं और मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। नौकर ने कहा, आपके वालिद साहब ने आपके लिए एक बहुत बड़ा मोती भेजा है। वो जिद करके मोती को वहां रखकर चला गया। जब फकीर अपने काम से वापस आए तो उन्होंने मोती देखकर पूछा, ये तुम्हें किसने दिया? शहजादी ने सारी कहानी सुना दी। फकीर बोले, अगर आप मेरे साथ खुश नहीं हैं और अपने वालिद के पास जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं। मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूंगा, बल्कि मैं ये चाहूंगा कि आप खुश रहें। इस पर शहजादी कहने लगी, मैं बेहद खुश हूँ, मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आपकी सूरत में मुझे सब कुछ मिल गया है। आप क्या चाहते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अल्लाह की रजा के लिए आपके साथ बहुत खुश हूँ और जहाँ तक इस मोती की बात है तो मैं इसे रखना नहीं चाहती। वो नौकर जबरदस्ती मेरे पास रखकर चला गया था। फकीर बोले, क्या आपको इस मोती से कोई लगाव नहीं? ये आपके वालिद ने आपके लिए भेजा है। शहजादी ने कहा, मुझे हर उस चीज से लगाव है जो अल्लाह की तरफ से मिली है, वरना जो कुछ मिला है वो आपकी सूरत में मिला है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यही काफी है कि मैं अल्लाह की रजा पर राजी हूँ। जैसे ही उसने ये कहा वो मोती गायब हो गया। फकीर मुस्कुरा दिए और बीवी से कुछ कहे बगैर दिल में सोचा, ये मोती जहाँ से आया था वहीं वापस चला गया। शहजादी जो एक इंतहाई सादा और नेक दिल औरत थी, अपने शौहर के साथ मोहब्बत से रहती थी। उम्र का इतना बड़ा फर्क होने के बावजूद उसे सुकून हासिल था। वो जिसने हमेशा शहाना जिंदगी देखी थी, अब सिर्फ 2 खजूरों पर गुजारा कर रही थी और कभी कभी तो खजूर भी मयसर नहीं होती थी। ये बहुत बड़ी कुर्बानी थी। एक दिन फकीर इबादत में मशगूल थे जब उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक आदमी सर पर एक बहुत बड़ा थाल लेकर आ रहा था। वो कहने लगा, बादशाह सलामत ने अपनी बेटी के लिए रात का खाना भेजा है और कहा है कि शहजादी सिर्फ पानी पिएगी तो मर जाएगी। उसका शौहर उसे खिलाने के काबिल नहीं है, जबकि उसका बाप जिंदा है और उसे सब कुछ दे सकता है। ये सुनकर शहजादी ने जवाब दिया, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है और ना ही कोई जरूरत। मैं सिर्फ अपने अल्लाह से मांगती हूँ, जाओ ये खाना वापस लेकर जाओ और जिसने भेजा है उसी को दे दो। मैं वही खाऊंगी जो अल्लाह मुझे अता करेगा।
यही मेरी दुआ है अल्लाह की बारगाह में। नौकर मजबूरन थाल लेकर खड़ा रहा, लेकिन शहजादी का सब्र जवाब दे गया और उसने कहा, मैं ये खाना नहीं खाऊंगी, मैं अल्लाह की दी हुई नेमतों की नाशुक्री नहीं करूंगी। शहजादी की बात सुनकर फकीर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह, ये औरत तेरी रजा पर राजी है और मेरी वजह से सब्र के साथ जिंदगी गुजार रही है, कभी कोई शिकायत नहीं की। आज तू मेरी बीवी के लिए आसमान से ऐसा फल उतार दे जो किसी ने कभी न देखा हो। फकीर की दुआ कबूल हुई और आसमान से चांदी के थाल नासिल होते हुए नजर आने लगे, जिनमें खाने रखे हुए थे। ये एक मौजज़ा था जो अल्लाह की रजा और शहजादी के सब्र का नतीजा था। बादशाह अपनी बेटी की मोहब्बत और फकीर के अजीबोगरीब हालात देखकर बेहद गुस्से में था। वो अपने महल में दाएं बाएं टहलता हुआ अपने ख्यालात में गुम था। वो कह रहा था, ये फकीर जादूगर है और इसी जादू की वजह से मेरी बेटी उसके साथ है। वो आसमान से खाने मंगवा रहा है और मेरी बेटी को मेरी सल्तनत से दूर कर रहा है। बादशाह ने अपने खास मुलाजिम से कहा, उस जादूगर को खत्म करना पड़ेगा, उसने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया है। मुलाजिम ने बादशाह की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, मैं एक ऐसे जादूगर को जानता हूँ जो उस फकीर का जादू खत्म कर सकता है। वो बहुत पहुंचा हुआ जादूगर है, उस जादूगर के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। वो फकीर क्या चीज है, एक बूढ़ा आदमी जिसकी उम्र का कोई भरोसा नहीं, उसका जादू कहाँ तक काम करेगा। बादशाह ने कहा, ठीक है, उसे फौरन बुलाओ ताकि वो उस फकीर का जादू खत्म कर सके। हम अपनी बेटी को उस जादू के चुंगल से आजाद कराएंगे। मुलाजिम फौरन उस जादूगर को लाने की तैयारी में लग गया और उधर बादशाह ने अपनी बेटी को वापस लाने की साजिश बना ली। वो समझता था कि फकीर के जादू को खत्म करना ही उसकी बेटी को महल में वापस लाने का वाहिद रास्ता है। अब देखना यह था कि क्या बादशाह की ये साजिश कामयाब होती है या फकीर की सच्चाई और ईमानदारी जादू पर गालिब आती। बादशाह जादूगर की बात सुनकर शदीद गुस्से में आ गया। वो चीख कर बोला, ये कैसे हो सकता है कि तुम जो सबसे बड़े जादूगर हो उस फकीर के आगे हार मान लो। मैं तुम्हें बुलाता हूँ और तुम ये कहते हो कि तुम मुकाबला नहीं कर सकते। आखिर वो कौन है, एक फकीर? जादूगर ने खौफ से लरसते हुए कहा, बादशाह सलामत, वो फकीर कोई आम इंसान नहीं है बल्कि अल्लाह का नेक बंदा है। जब मैंने अपने अमल शुरू किए तो मुझे पता चला कि उसके पास अल्लाह की ताकत है, जादू नहीं। अगर मैंने उससे मुकाबला करने की कोशिश की तो मेरा जादू नाकाम हो जाएगा और मुझे बहुत बड़ी तबाही का सामना करना पड़ेगा। बादशाह ने अपनी मुट्ठी भेजते हुए कहा, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, चाहे जो भी हो। मैं नहीं मान सकता कि कोई फकीर मेरी सल्तनत के खिलाफ जा सकता है। जादूगर ने आजिजी से जवाब दिया, बादशाह सलामत, कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिनमें दुनियावी ताकतें काम नहीं करती। वो अल्लाह वाला बंदा है और उसके साथ मुकाबला करना मेरी सलाहियत से बाहर है। आपको अपनी बेटी के फैसले को मानना होगा, वरना हालात और बिगड़ सकते हैं। ये सुनकर बादशाह खामोश हो गया, लेकिन उसका गुस्सा कम ना हुआ। अब वो ये सोचने लगा कि आखिर वो क्या करे कि जिससे अपनी बेटी को वापस ला सके। उसके दिल में अभी भी शक और बेचैनी थी, लेकिन जादूगर की बातों ने उसे लम्हे भर के लिए रुकने पर मजबूर कर दिया। बादशाह जादूगर की तालीमात पर अमल करते हुए शिद्दत से मंत्र पढ़ता रहा और उसके दिल में अपनी बेटी की मोहब्बत शिद्दत के साथ बढ़ती गई। लेकिन उसे इस बात का इदराक नहीं था कि इसके अमल में जो ताकत है वो दरअसल उस अल्लाह वाले फकीर की दुआ और ईमान की ताकत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। उधर फकीर ने अपनी बीवी को ये समझाया, अल्लाह की रहमत हमेशा उनके साथ है। वो जानते थे कि बादशाह उनकी जिंदगी में मदाखलत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उन्होंने ये भी जान लिया कि ईमान और दुआ की ताकत से सब कुछ मुमकिन है। फकीर ने अपनी बीवी के सामने कुरान पाक खोलकर उसमें वो आयत पढ़ी जो अल्लाह की मदद और हिफाजत की दुआ के लिए थी। शहजादी ने अपने शौहर की बातों को सुना और उसकी बातों से सुकून महसूस किया। वो जानती थी कि अल्लाह की मदद उनके साथ है। उसने भी दुआ करने का फैसला किया और अल्लाह से मदद तलब की। या अल्लाह, मेरे शौहर को ताकत दे और हमें इस आजमाइश से निकाल। उसी दौरान बादशाह अपने मंत्र को बार बार दोहराता रहा, मगर उसकी हर कोशिश नाकाम होती गई। न तो वो फकीर को खत्म कर सका और न ही अपनी बेटी को वापस ला सका। फकीर ने एक रात अल्लाह से खुसूसी दुआ की, या अल्लाह, हमें अपनी रहमत अता फरमा और हमारे दरमियान जुदाई को खत्म कर। अचानक आसमान से एक रोशनी की किरण आई
और पूरे जंगल में एक अजीब सा सुकून फैल गया। फकीर को महसूस हुआ कि अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली है। वो जानता था कि अल्लाह की मदद हमेशा उनके साथ है और बादशाह के जादू की ताकत अब खत्म हो चुकी है। बादशाह ने जब देखा कि उसके मंत्र का कोई असर नहीं हो रहा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो समझता था कि उसकी कुव्वत सब कुछ खत्म कर सकती है, मगर अब वो ये महसूस कर रहा था कि उसके अमाल सिर्फ उसे नुकसान दे रहे हैं। वो ये भूल चुका था कि अल्लाह की राह से भटकना कभी भी अच्छा नहीं होता। फकीर ने अपनी बीवी को समझाया कि अल्लाह हमेशा उनके साथ है और उनकी कोशिश बेकार नहीं जाएंगी। उसी लम्हे बादशाह की जानिब से खबर पहुंची। शहजादी और फकीर महल में पहुंचे तो हर तरफ हंगामा बरपा था। दरबारी हैरत ज़दा थे कि बादशाह के साथ क्या हो गया है। वो महल में दौड़ते भागते थे और उनकी आंखों में खौफ और हैरानी साफ नजर आ रही थी। जब शहजादी अपने शौहर के साथ बादशाह के कमरे में पहुंची तो वहां का मंजर देखकर उसके दिल में दर्द उठा। बादशाह अब एक जानवर की तरह नजर आ रहा था। उसकी शक्ल शेर जैसी हो चुकी थी। दरबारी और मुलाजमीन खौफजदा थे और उसे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। बादशाह के जिस्म पर बाल उगे हुए थे और उसकी आंखों में वहशत थी। वो गुस्से से गरज रहा था, मगर उसकी आवाज भी अब किसी इंसान की नहीं रही थी। शहजादी के दिल में दुख और अफसोस था, मगर उसने हिम्मत करते हुए अपने बाप के करीब जाकर कहा, अब्बा जान, आपको क्या हो गया है? क्यों आपने ये सब कुछ किया? मगर बादशाह अपने बोलने की हालत में नहीं था। उसकी तमाम कोशिशें और जिद्दें उसी के खिलाफ पलट चुकी थीं। फकीर ने शहजादी को समझाया कि ये उसके बाप की अपनी गलतियों का नतीजा है। अब कोई शख्स जादू का सहारा लेता है और अल्लाह से दूर हो जाता है तो उसी के साथ यही होता है। अल्लाह की कुदरत के सामने कोई ताकत नहीं ठहर सकती। बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने सोचा कि अगर वो अपने अमाल में सच्चाई और ईमान की ताकत को तस्लीम करता तो शायद उसका हाल कुछ और ही होता। फकीर ने बादशाह की तरफ देखा और दुआ की कि या अल्लाह, इसको मुआफ कर दे और इसकी हालत को बेहतर कर दे। शहजादी ने अपने शौहर की बातों को गौर से सुना और अपने बाप के लिए अल्लाह से मगफिरत की दुआ की। कुछ ही लम्हों के बाद बादशाह की शक्ल बदलने लगी और उसके चेहरे के बाल गायब होने लगे। वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान की शक्ल में वापस आ गया, मगर उसकी हालत अभी भी कमजोर थी। उसने आंखें खोली और अपनी बेटी और दामाद को सामने देखा। बादशाह की आंखों में नदामत के आंसू थे। उसने कमजोर आवाज में कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने तुम्हें और खुद को अल्लाह के रास्ते से हटा दिया। मुझे माफ कर दो। शहजादी ने अपने बाप को गले लगाया और कहा, अल्लाह सबको माफ करने वाला है। अब आपको भी अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए और अल्लाह की राह पर चलना चाहिए। बादशाह ने तौबा की और अल्लाह के सामने अपनी गलतियों का एतराफ किया। उसके बाद उसने अपनी बेटी और दामाद को कबूल किया और अपनी जिंदगी में तब्दीली ले आया। जिस्मानी तौर पर तो वो दोबारा इंसान बन चुका था, लेकिन उसके दिल में जो दर्द और नदामत थी वो उसे हमेशा याद दिलाती रही कि उसने क्या खोया और क्या पाया। शहजादी ने बाप की बातें सुनकर दिलगीर होकर कहा, अब्बा जान, आपने दुनिया की दौलत और ताकत के लिए मुझे कुर्बान करना चाहा, लेकिन अल्लाह ने मेरे लिए जो फैसला किया वो ही बेहतरीन था। आपको अपनी बेटी की खुशी से ज्यादा अपनी खुदगर्जी अजीज थी, लेकिन देखें, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की और मुझे ऐसा शौहर अता किया जो अल्लाह से डरने वाला, ईमानदार और इबादत गुजार है। बादशाह नदामत भरी आंखों से अपनी बेटी की जानिब देख रहा था। उसने एतराफ करते हुए कहा, बेटी, मुझे अब समझ आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मैंने तुम्हारी खुशी और तुम्हारे दीन के रास्ते में रुकावट बनना चाहा, लेकिन अल्लाह ने अपने बंदे की हिफाजत की। वो फकीर सच कहता था कि एक दीनदार शौहर ही बीवी की इज्जत करता है और उसे हकीकी खुशी देता है। शहजादी ने रोते हुए कहा, अब्बा जान, अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं उस रास्ते पे चल सकूं जो हक का रास्ता है। मैंने आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहा, लेकिन आपने मुझे जादू और झूठ के जाल में फंसाना चाहा। फिर भी उसके बावजूद मैं आपको मुआफ करती हूँ, क्योंकि आप मेरे वालिद हैं और मैं चाहती हूँ कि अल्लाह भी आपको मुआफ कर दे। फकीर जो खामोशी से ये सब सुन रहा था आगे बढ़ा और बादशाह से कहा, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। अगर आप सच्चे दिल से तौबा करें और अपनी जिंदगी को बदलने का अहद करें तो अल्लाह आपकी हालत को बेहतर कर सकता है। बादशाह ने सर झुकाया और कहा, मैं तौबा करता हूँ
मैं अपने तमाम गुनाहों का एतराफ करता हूँ और अल्लाह से माफी मांगता हूँ। शहजादी अपने शौहर के साथ वापस झोपड़ी में लौट गई, जहाँ वो सुकून और मोहब्बत की जिंदगी गुजार रही थी। और बादशाह ने भी अपनी बाकी जिंदगी अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने में लगा दी, ताकि वो अपनी आखिरत को बेहतर बना सके। क्योंकि जो शौहर अपनी बीवी का एहतराम करता है, मैं क्यों ऐसे राजकुमार को तलाश करूं जिसकी बहुत बड़ी सल्तनत हो लेकिन उसका दिल बहुत छोटा हो। मैं जो अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगती हूँ मुझे मिल जाता है, फिर मुझे क्या चाहिए। अभी वो बोल ही रही थी कि एक लम्हे उस फकीर की शक्ल बदली। वो नौजवान बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। उसने अपने शौहर को गौर से देखा तो कहने लगी कि सुभान अल्लाह, आप कौन हैं? उस अल्लाह वाले ने कहा, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। तुमने सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी को गुजारा। मैंने तुम्हें जो खिलाया तुमने वो खाया, कभी उफ तक नहीं की। अल्लाह पाक ने भी तुमसे खुश होकर तुम्हें ये शौहर अता किया है जिसका तुम हक रखती थी। शहजादी को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। बादशाह भी ये देखकर हैरान था, जो अपनी हालत पर रो रहा था और अफसोस कर रहा था। उसने कहा, मैंने 80 साल के बूढ़े को इतना धुतकारा कि मेरी शक्ल एक जानवर जैसी बन गई, लेकिन ये अल्लाह वाले फिर से जवान हो गए। उसके बाद वो अपनी बीवी को साथ लेकर जंगल के रास्ते से गुजरने लगे तो उसने कहा, हमें उस झोपड़ी में वापस नहीं जाना। मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूँ जहाँ की तुम मलका बनोगी। ये झोपड़ी, ये जंगल, ये खाली पेड़, ये सब तुम्हारा इम्तिहान था। तुम इस इम्तिहान में कामयाब हो गई। मैंने तुमसे कहा था ना, जब तुम्हें वजह का पता चलेगा तो तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक शहजादी जो कि एक गरीब की झोपड़ी में उसकी बीवी बनकर रह रही थी और अल्लाह से हर चीज मांगती थी। उसने जो भी मांगा सिर्फ अल्लाह ताला से मांगा। जो लोग अल्लाह की जात पर भरोसा रखते हैं, अल्लाह ताला उन्हें उस जगह से नवाजता है जहां से उनका कोई गुमान नहीं होता। इसलिए हम सबको सिर्फ अल्लाह की जात पर भरोसा रखना चाहिए और सिर्फ अल्लाह की जात से मांगना चाहिए।